مکمل ہے مہمان ان کا میں آپ کو تعارف کروا دوں. ڈاکٹر سید سبطین حسین شاہ تجزیہ نگار ہیں, جرنلسٹ ہیں, اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آن لائن ابھی موجود ہیں. آپ کو پبلک رائٹس پہ خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر سید سبطین شاہ صاحب. السلام علیکم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں پبلک رائٹس کی طرف سے, اپنی ٹی وی کی طرف سے جی. اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو رپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے تنظیم, یہ کون سی ہے اور کہاں بیس ہے, اور یہ کس طرح اپنی رپورٹس مرتب کرتی ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹ کیا ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے تعزیت کی ہے میری والدہ صاحب کی رحلت کے حوالے سے بھی شکر گزار ہوں آپ کا اپنے اس پروگرام میں آنے. انٹرنیشنل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برلن میں ہے, جو جرمنی کا دارالحکومت ہے. اور اس آرگنائزیشن کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے کہ معاشرے کو کرپشن سے پاک کیا جائے, کرپشن کی نشاندہی کی جائے. مختلف ملکوں کی یہ رپورٹس مرتب کرتی ہے اور یہ ایک آزاد اور غیر حکومتی ادارہ ہے. ٹرانسپیرنسی آرگنائزیشن جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتی ہے اور مرتب کرتی ہے دنیا میں جو مختلف مواقع ہیں وہاں پر کرپشن کے حوالے سے, کرپشن کا کیا رجحانات جاتے ہیں اور کس طرح کرپشن اوپر بڑھ رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے. ان ممالک کے حوالے, مختلف ممالک کے حوالے سے یہ اپنی تجزیاتی رپورٹیں مرتب کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ تاکہ جو یہ ممالک اپنے ملک کے ممالک میں اقدامات کر کے کرپشن کو روکیں. اور اس کی رپورٹس مختلف اداروں کی مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں, مختلف جو عالمی ادارے جو ہوتی ہیں یا پھر مختلف دیگر ذرائع سے یہ رپورٹس جمع کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرتی ہے. اور اس کا کام وہ انتہائی دقیق طریقے سے ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آزاد ذرائع سے مواد حاصل کر کے رپورٹ مرتب کی جائیں. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اسی طرح جس طرح مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, مثلا ایمنسٹی انٹرنیشنل وہ انسانی حقوق کے کام کرتی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے. اور یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے ایکسٹریسٹو ممالک متعلق پچھلے سال 2020 میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سسٹم کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, مثلا بیوروکریسی کے ذریعے ہو رہی ہے یا اداروں کے اندر ہو رہی ہے, یہ ان چیز کو زیادہ ڈیولپ کرتی ہے. جی, جو مختلف ممالک میں کرپشن کسی لیول پہ, خاص طور پہ جو حکومتی اداروں میں یا حکومتی مختلف اہلکار ہوتے ہیں کرپشن کرتے ہیں, اس کو سامنے لاتی ہے, واضح کرتی ہے کہ کس حد تک کرپشن ہو رہی ہے, کتنا کس ممالک کس ملک کا کتنا درجہ ہے کرپشن کے حوالے سے. 180 ممالک کے حوالے سے اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے گزشتہ دنوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. اس ریجن کے ممالک کے حوالے سے بھی, خاص طور پر حوالے سے بھی بہت اہم رپورٹ ہے. آگے سوالات پوچھیں گے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے کتنی اہم ہے یہ رپورٹ. جی بالکل, یہ ظاہر اہمیت اختیار کر چکی ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت بہت نیچے گئی ہے. یہ جو جتنا عرصہ ہوا ہے, مثلا لاک ڈاؤن کا 1 سال تو مکمل ہو چکا ہے, اور 1 سال کے عرصے میں جس طرح دنیا کی معیشت نیچے گئی ہے, اسی طرح کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مثلا بیوروکریسی ہو گئی یا جو لوگ جن کے پاس اختیارات تھے انہوں نے کرپشن میں اور اضافہ کر دیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت کا موقف تھا کہ یہ پچھلی 2-3 سال پرانی رپورٹیں ہیں, سروے ہے, اور ان کی پر رپورٹ مرتب کی گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, یا کہ جو ابھی وقت ہے حکومت ہے موجودہ اس کے دور کی ہے رپورٹ؟ دیکھیے, جو مرتب ہوتی ہے پچھلے حوالات ضرور ہوتے ہیں کہ تاکہ پچھلے کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے. رپورٹ جو مرتب ہوئی ہے اس میں پاکستان کے حوالوں زیادہ تر جو چیزیں وہ نئی باتیں سامنے آئی ہیں, اور تھوڑے بہت حوالے جات پچھلی رپورٹوں کے حوالے سے ہیں. حکومتی اہلکار جو حکومتی ترجمان ہے وہ ایک بہانے تلاش کرتے ہیں کسی طرح, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے کرپشن کو پاکستان کے حوالے سے ابھی جو کرپشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو 2 پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ جو تقریباً کوئی 2.5 سال ہے عمران خان کی حکومت کے, مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جب مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ذرائع آمدنی نہیں بڑھتے, لوگ
अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हैं, गलत ज़राए इस्तेमाल करते हैं, लोग करप्शन की तरफ आते हैं। जो हुकूमत बैठे हुए हैं वो रिश्वत लेते हैं, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कर लेते हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट सतह पर लोग होते हैं तो वो चोरी चिकारी पे आ जाते हैं। खेती की वारदातों में इजाफा हुआ है, महंगाई की वजह से करप्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। दूसरी बात यह है कि जो सिस्टम चूंकि पिछला चला आ रहा था, पिछले सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा थी, और वही लोग, वही हुकूमती एहलकार, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कोई खास तब्दीली रुनमा नहीं हुई, वही करप्ट एहलकार नई हुकूमत और करप्शन को उस तरह फरोग देते हैं। इस हुकूमत के अंदर करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि ऊपर लेवल तक तो कमीशन जो थे, हुकूमती एहलकार कमीशन लेते थे, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों में एक छोटा सा एक काम है, उसके हवाले से एक हुकूमती एहलकार जो बहुत निचली सतह पर है, उसने 1,50,000 रिश्वत लेने का मुतालबा किया उन अफराद से जिनका काम क्या था। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आप भी बाहर रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को 2 किस्म के कार्ड्स इशू होते हैं। एक कार्ड होता है जिसका नाम है नाइक कॉप है, नेशनल आईडी कार्ड और ओवरसीज पाकिस्तानी होता है। दूसरा जो है पीओसी, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड उन अफराद के लिए होता है जो बाहर चले गए, नेशनलिटी उस मुल्क की ले ली, उस मुल्क की नेशनलिटी सिर्फ सिंगल होती, डबल नेशनलिटी नहीं होती, उनको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ये का पाकिस्तानी है, उनको कार्ड इशू किया जाता है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, 7 साल के लिए वीजा, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और मोबाइल की ले सकते हैं। ये ओरिजिन कार्ड, इस ओरिजिन कार्ड से एक खातून ने अपने बेटे के लिए अप्लाई किया जिसका ओरिजिन कोयटा से है। उस खातून के वालिदैन अभी कोयटा हैं, और ये लोग, वो फैमिली जो है वो कोयटा की कंधारी फैमिली है जो 150 साल या 200 साल से कोयटा में आबाद है। और नादरा का सिस्टम ये है कि नादरा में अगर अप्लाई करें तो नादरा अगर किसी, पंजाब के अंदर तो इंक्वायरी नहीं होती, पंजाब के लोगों पर उनको बहुत ज्यादा इत्मीनान है। इंक्वायरी होती है जो बॉर्डर्स हैं या दूर दराज के लोग हैं, बलोचिस्तान है, उनके लोगों की इंक्वायरी होती है, या जो सुबह सरात साहब का था खैबर पख्तूनख्वा, वहां के लोगों की इंक्वायरी होती है, या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की इंक्वायरी होती है, उन पे शक किया जाता है। इंक्वायरी के लिए नादरा ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा, इंटीरियर मिनिस्ट्री भेजा, और ये केस दिसंबर के अवाइल का केस है, और अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। अब जाकर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का वो फर्द एहलकार है कोयटा में, उसने डायरेक्ट रब्ता किया वाली फैमिली से कि ये केस तो आपका हल हो गया, पॉजिटिव केस है, लेकिन मैं उसका तक केस आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा नादरा को जब तक आप मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगे। उन्होंने उनसे पूछा, ये व्हाट्सएप की उन्होंने पूछा कि आप कितनी मिठाई चाहते हैं। उसने कहा 1,50,000 रुपया अगर मुझे दे दें तो फिर जी मिठाई के तौर पर 1,50,000 रुपया, तो मैं आपका केस पॉजिटिव करके फॉरवर्ड करता हूँ नादरा को, वरना मैं आपकी पूरी फैमिली को जिनके कार्ड पहले भी बने हुए हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। तो करप्शन की इतनी हो गई है। उन्होंने वही जो चैटिंग थी, आपकी इस बात से ये अंदाजा हुआ है कि मिशनरी वही पुरानी है। जब ऊपर से खतरा हुआ कि करप्शन नहीं करनी और करप्शन के खिलाफ एक हुकूमत आई है, उसने एक अलम बुलंद किया है कि हमने करप्शन के खिलाफ लड़ना है, तो ब्यूरोक्रेसी जितनी भी बैठी हुई थी नीचे, वो उन्होंने अपना काम तेज कर दिया कि बाद में शायद मौका मिले ना मिले, अब जितना भी कर सकते हैं कर लें जल्दी जल्दी। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि ये पिछले दिनों कोई ठेकेदार हजरात थे, तो उनके करीबी रिश्तेदारों से रब्ता हुआ है, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या सिचुएशन है। पहले तो आप बड़ा कमीशन दिया करते थे, कहते हैं पहले अगर हम 20% देते तो अभी 25% दे रहे हैं, इस वजह से कि वो कहते हैं कि अभी किसी को पता भी नहीं चले, और इस तरीके से देते हैं कि ठेका 1 महीने के बाद मिलेगा उसे, लेकिन उससे पहले वो एडवांस यहाँ दूसरे किसी मुल्क में उसके करीबी रिश्तेदारों को पे कर देता है। इस तरह की सिचुएशन है, तो फिर ज़ाहिर है इससे पकड़े जाना तो बहुत मुश्किल होता है कि किसको कैसे ट्रेस करें। लेकिन यह है कि करप्शन इस हद तक भी बढ़ चुकी है जिनका कोई एविडेंस नहीं होता। तो ये आपका जो कहना है उससे यही जाहिर होता है कि करप्शन में ज़ाहिर है इस तरह बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मिशनरी पुरानी है और नया सिस्टम लगा है, लेकिन वो सिस्टम अभी फाल नहीं हुआ। काज़मी साहब, ये जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है बल्कि मिनिस्टर्स ऊपर आए हैं, मिनिस्टर्स मुख्तियों से ली गई है, मुख्तलिफ पार्टियों की आजमाए हुए लोगों को उन मिनिस्ट्रीज में लगाया गया है।
میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو منسٹرز جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ منسٹرز کی جو کیبنٹس ہے, جو فیڈرل کیبنٹ ہے یا پروونشل کیبنٹس ہیں, اور 80-90% افراد وہ ہیں جو مختلف پارٹیوں میں آلریڈی آزمائے جا چکے ہیں اور کرپشن کے حوالے سے ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا صرف بیوروکریسی ہے. اور یہ جو آپ کو مثال دی یہ, اور پھر ان سوری نے ایک پرائم منسٹر کی طرف سے سٹیزن پورٹل بنا ہے جو شکایت کر سکتے ہیں. اس پہ فیملی نے شکایت کی, اور شکایت کیے ہوئے تقریباً 5-6 دن ہو چکے ہیں. لیکن نادر جو پرائم منسٹر آفس کے اندر جو یہ سیکشن ہے جو اس پہ کام کری, انہوں نے فوری طور پر کام کیا اور اس کے کیس کو آگے فارورڈ کیا نادرا کی طرف. نادرا نے فوری طور پر اس کو فارورڈ کیا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے. لیکن انٹیریئر منسٹری سے کئی دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو جواب نہیں آیا. وہاں پر سستی کا شکار ہے جو وہاں پر سسٹم ہے. اس یہ سسٹم جو فرسودہ نظام ہے, یہ نظام ایسا ہے کہ اس پر ٹاکیاں لگائی جاتی ہیں, کسی کپڑے پر پیبند لگائے جاتے ہیں, تو اس طرح اس کو گزارا چلایا جاتا ہے, کچھ امینڈمنٹ کی جاتی ہے. جب تک یہ فرسودہ نظام ختم کر کے نیا نظام ایسا نہیں آتا جو لوگ پبلک کے لیے ہو, تو اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہاں پر کرپشن اور مختلف مسائل ہیں وہ موجود رہیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو آپ نے نادرا کے حوالے سے بات کیا, تو میں یہاں جو اوورسیز پاکستانی ہمیں سن رہے ہیں, میں ان کی انفارمیشن کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ 1 فروری سے جتنا ویزا سسٹم ہے پاکستان کا وہ سارا آن لائن کر دیا گیا ہے. مینول کوئی بھی درخواست کسی بھی قونصلیٹ میں یا ہائی کمیشن میں وصول نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کی خواہش پر ہر مہینے کی پہلے بدھ کو آن لائن کچہری کا بندوبست کیا گیا ہے. اگر اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی شکایت ہے تو وہاں کونسل جنرل موجود ہوگا اس آن لائن کچہری میں, اور وہ ساری اپنی جو شکایات ہیں وہ وہاں درج کروا سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ٹریولنگ کے لیے ہے کہ یہاں جو گورنمنٹ برطانیہ جس نے اس پر پابندی لگائی ہے یہاں کہ کچھ 30 ممالک ایسے ہیں جہاں سے لوگ آئیں گے برطانیہ میں, تو ان کو ہوٹل میں رہنا پڑے گا اور اس کا خرچہ بھی وہی دیں گے. اس لسٹ میں پاکستان تو موجود نہیں ہے, نہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن ان کا بھی جب نیگیٹو رزلٹ آئے گا تو ان کو اپنے گھروں میں جانے کی اجازت ملے گی. اس کے علاوہ جو پاکستان جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک CAA نے نیا رول پرووائڈ کیا کہ جو برٹش ہولڈر پاسپورٹ ہیں والے ہیں وہ وہاں نہیں جا سکتے جب 28 فروری تک. تو اس کے لیے جو نائکوپ کارڈ بنا ہوا ہے یا جس کا ویزا ہوگا پاکستانی یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں گے وہ جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بڑا غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو واپس کر دیا گیا ایئرپورٹ سے, بے شمار ہمیں فون آئے. لیکن ہماری گزارش ہے جو لوگ ہیں انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے ہائی کمیشن کے, کہ وہ اوریجنل صورتحال سے لوگوں کو آگاہی دیں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی. تو یہ چیز ضروری تھی شاہ صاحب. میں نے سوچا کہ آپ نے دیکھنے سننے والوں کو سے یہ شیئر کر دوں. یہ کافی چینجنگ آئی ہے ان دنوں میں جو 1 فروری سے یہ ہوں گی, باقاعدہ طور پر موجود ہوں گی. مینول پاس کیونکہ درخواستیں جتنی بھی تھی کونسلیٹ میں جمع ہوتی تھی ان کے بارے میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہاں کوئی بھی درخواست وصول نہیں کی جائے گی, ساری آن لائن ہوگی. جی شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے. جی میں وہ جو ہماری بات چل رہی تھی نادرا کے حوالے سے, اچھا سسٹم آپ نے بات کی آن لائن سسٹم کے حوالے سے. یہ بڑا اچھا آن لائن سسٹم, ساتھ ساتھ لوگوں کو تربیت کی اور گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ نادرا میں جو اپلائی کرتے ہیں, چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیز ہیں, ان کو آن لائن سسٹم چلانا نہیں آتا. بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی مدد لے لیتے ہیں کہ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہوتی ہے اس حوالے سے. ان مشکلات کے حل کے لیے فوری طور پہ جو آن لائن ہیلپ لائن ہو ساتھ لوگوں کو گائیڈ کر سکے اور اس میں ایک آسانی پیدا ہوگی. تو ایک بڑا اچھا ہے کہ آن لائن, لیکن یہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو مدت دی جاتی ہے, مثلا جو اپلیکیشنز ہیں ان کے لیے 2 ہفتے یا 3 ہفتے, ان 3 ہفتوں میں مکمل ہونا چاہیے. وہ ڈبل فیس ہوتی ہے جس طرح بھی ہوتا ہے. اور جو کر لیتا ہوں پھر آگے بات کرتا ہیں شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا ٹاپک
इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। जी जी तो ज़ाहिर है उन्होंने ये जो कोरोना कोविड-19 वबा फैली है, इसको मद्देनजर रख के उन्होंने सारी फिगर्स फैक्ट्स जो है पूरे दुनिया की दी है उन्होंने, और 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का इस तरह नंबर आना। इमरान खान जो अपने आप को बड़ा मदीना की रियासत के नारे लगा रहे हैं और तस्वीर हाथ में पकड़ी हुई और अमीरुल मोमिनीन बनने के दावे कर रहे हैं, तो ये अमीरुल मोमिनीन कैसे हैं कि समाचार है इनके मुंह पर जो जो ये फैक्ट्स और फिगर जो सामने आई हैं, कोई मतलब के कोई रिफॉर्म्स हमें नजर नहीं आ रही, कोई वाइट बेंच जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आवाम के इशू है उनके इंटरेस्ट में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, कोई मतलब के इतनी मुनाफकत ये शख्स बहुत ग्रेट बनने बहुत ग्रेट लीडर बन रहा है, आगे पीछे सारे डाकुओं को जमा करके तो कोई बन सकता है। इंसान जो है वो अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आपकी सोबत कौन सी है? अच्छा की सोबत में आप जी जी अच्छा ये बताइएगा कोई इनके लिए क्या आपकी तजवीज़ क्या है, क्या करें, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खेल का मैदान नहीं है, आपका खेल का मैदान नहीं, मुल्क है, इसको सीरियस इसकी मैनेजमेंट लेनी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है। आपके ये खेल का कौन से एक्सपर्टीज आप लेंगे और मुल्क को चलाने के लिए? वही शेख रशीद, वही सारे इधर उधर से भागे हुए वो चोर और डाकू, और फिर आप दूसरों को चोर और डाकू कहते हैं, अपने आगे पीछे सब चोर और डाकू को जम करके ये शख्स वैसे ही ग्रेट बनने की कोशिश कर रहा है। अभी जो रिपोर्ट आई है वो इसके मुंह पर तमाशा है। ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन इसे से एक मेरा पॉइंट प्लीज कि जिन गरीब लोगों की कैंसर अस्पताल हमने कहा था बनाया है इसने और ये गरीबों की मदद करेगा, गरीबों की चमड़ी उधेड़ दे रखी है इसने महंगाई करके। चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इस पर बात करते हैं। देखिए हम देखिए जी शाह साहब, देखा है आपने ये जज्बात है यहाँ लोगों के, क्या कहेंगे इन पर? जहाँ तक इनके जो कमेंट्स हैं मुझे जहाँ तक समझ आई है, इन्होंने ये कहा है कि एक हुकूमत तो नहीं आई लेकिन पुराने लोगों को उन्होंने हुकूमत में लिया, और वो लोग जो मैं एक और कॉलर को शामिल करता थे क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी क्या हाल है जनाब, क्या कहेंगे? तो आपके मेहमान को भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। अवल भाई मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन रहा था, चलो इनकी बात एक मौके पे मान भी ले जी कि ब्यूरोक्रेसी तो अमल नहीं कर रही, इनकी बात मान ले तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अगर बहनोई का प्लाट छुड़वाना हो तो 3 IG तब्दील कर लेते हैं आप और अपनी मर्जी का वहाँ पे SP ला के प्लाट जो है वो खाली करवा लेते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी का कसूर है या आप ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं? एक तो ये बता दें। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आज तक तो ये नहीं था पाकिस्तान की तारीख में कि ऐसा वजीर आजम हो कि एक दिन वो बयान कुछ देता है और दूसरे दिन अपना बयान ही भूल जाता है और उसकी तब्दील कर देता है, जिसकी मिसाल ये ब्रेक्सिट की बात कर लें। इसमें उसने कहा कि जी वो देखें जी 2017 के वो कागज उनके इल्जाम है और हम पे डाल रहे हैं, और दूसरे दिन वो खुद ही कहता है मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं उसमें क्या है। तो इस किस्म की बातें अगर वज़ीर आज़म करे तो क्या कौम की क़यादत के लिए या कौम के लिए ये मुल्क के लिए जरूरी है ऐसा लीडर जिसको अपनी बातों पे यकीन और भूल जाए, सुबह करे रात को भूल जाए? तीसरी बात मुझे आप ये बताएं कि अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मुल्क में आप कह रहे हैं जी कि जो चोर चकारी और डाके हो रहे हैं, ये खुद कहता था कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो उसका जिम्मेदार उसका जो सरबराह मुल्क का वो होता है। अब देखें जो हालत महंगाई से हो गई है और जो हालत लोगों की करती है, और इसके बावजूद जो चीनी चोर थे जिन्होंने 200 अरब रुपया कमाया और भाग गए बाहर, उनको वापस बुला के दोबारा उनके हेलीकॉप्टरों पे अब दोबारा 50-50 करोड़ की रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत दे के उनको साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है?
ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। खुदा के लिए कुछ थोड़ा सा इतना इंसाफ कर दिया करो कि कम से कम जो नाक के सामने जो कुछ हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं, उनको ना छुपाने की कोशिश करें, उनको पकड़ें और उनसे बताएं कि ये क्या हो रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ इंसाफ की कोई बात करने वाला भी पाकिस्तान में है। जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आप दो कॉलर थे, आपने इनके व्यूज सुने। देख लें कि किस कदर ये जो रिपोर्ट आई है इसका कितना असर हुआ है, और इसको अगर सीरियस नहीं लेती गवर्नमेंट और इस हालात को ठीक नहीं करना चाह रही थी, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? और आपने सुना ये लास्ट भी गुफ्तगू सुनी है कि कोई चीज़ सामने वाज़ह नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट की, और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, अवाम जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं और मायूस हैं। और जिस तरह ये खातून हमारी मोहतरम बहन पाकिस्तान से वापस ग़ालिबन बरतानिया गई हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन कर रही थी, तो इसी तरह का हाल जो है पाकिस्तान के अंदर हर फर्द का है कि वो एक जिस तरह पेचीदगी का शिकार हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है। लोग जिसको इमरान खान को पर एतमाद करके इनको लेकर आए, लोगों की उम्मीदें थी, मुल्क का हीरो था, इसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत कर दिया 92 में, और फिर एक लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि ये निज़ाम को बदलेंगे, ये जो फसूदा निज़ाम है उसको ख़त्म करके नया निज़ाम लाएंगे, मुल्क में एक वाले से मुल्क तरक्की करेगा, सियासी वाले से भी आगे जाएगा, पाकिस्तान के ताल्लुकात दीगर वाले के साथ बेहतर होंगे। तो ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। उसकी बहुत वजूहत है क्यों नहीं हो सका। कि जो टीम है, फिर उस पर बात आती है टीम के हवाले से कि उनकी टीम जो है वो या फिर करप्ट है या फिर थकी हुई टीम है। कोई ऐसी एक्टिव टीम नहीं है जो इस मुल्क को बेहतरीन तरीके से चला सकती। जो पाकिस्तान जो है कॉम्प्लेक्स का शिकार है, अफरा तफरी का शिकार है। हर शोबे में देखें कि लोग परेशान हैं और मायूसी का शिकार हैं। तालीम से लेकर जो इक़्तिसादी मामलात हैं उस तक लोग जो हैं इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है। लोग जो है वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। लोग जो है कई लोग ऐसे हैं कि दो काम करके भी अखराजात पूरे नहीं कर सकते। कई लोग करप्शन की तरफ जा रहे हैं। कई लोग नौजवान खासतौर पर इतने ज़्यादा मायूस हो चुके हैं कि मैं आपको अगर मिसाल दूँ महकमा तालीम की मिसाल दूँ कि महकमा तालीम का जो सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है HSC, हायर एजुकेशन कमीशन, अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा लापरवाही है कि मसलन एक एप्लीकेशन है, एक हमारे दोस्त ने एप्लीकेशन दी कि वो फॉरेन डिग्री होल्डर थे, उन्होंने कहा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मुझे चाहिए HSC से। HSC वालों ने उनका जो यूरोप से डिग्री थी उनको सर्टिफिकेट किसी खातून का जो चाइना से करके आई थी। इतने वो भी ब्यूरोक्रेसी भी इतनी मायूस है या इतनी कंफ्यूज है कि उन्होंने सर्टिफिकेट जो था किसी मर्द का था सर्टिफिकेट, तो वो उनको इशू करने के बजाय खातून का सर्टिफिकेट उनको भेज दिया। अब नाम खातून का है, ID का नंबर मर्द का है। ये पूरे मामला जो है इस तरह जा रहे हैं। हर इदारा मुल्क का जो चलाने वाले लोग हैं वो भी कंफ्यूजन के शिकार हैं और उनको भी समझ नहीं आती क्या करना है, या फिर लापरवाही कर रहे हैं जानबूझ के, या इतने नाअहल अफराद पिछली हुकूमतों ने भर्ती किए हैं उनका सिलसिला जारी है और वो काम नहीं कर रहे, वो लापरवाही कर रहे हैं। एक जो डॉक्यूमेंट जो 3-4 अफराद से चेक होकर ऊपर आता है और उसको वो क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा एक मर्द को भेज दिया, खातून का डॉक्यूमेंट ID कार्ड नंबर। एक और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं माजूर जाता हूँ, मुझे आना पड़ा है दोबारा। मैं सोचता थोड़े गाँव से बड़ा मजा आ रहा है। आपके प्रोग्राम माशाल्लाह होते ही बड़े दिलचस्प हैं और खालस और खड़े होते हैं इस दौर में। ये मैं आपको एक चीज की आपकी तरफ करूँगा। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो इमरान खान जो है वो उसकी करप्शन नजर नहीं आई। डॉक्टर साहब जरा गौर करें, खुदा के लिए गौर करें कि मुझे ये बताएं कि फार्म फंडक केस में 3 अकाउंट इमरान खान के हैं जो अब निकले हैं, जिनका नाम और निशान नहीं उसने रखा उसने हॉस्पिटल में और दूसरी जगहों में। उसके बाद और मजीद आगे बढ़े तो यही इमरान खान है कि जिसकी ऑफशोर कंपनियां भी निकली, 3 कंपनियां जिसकी अपनी निकली हैं। यही इमरान खान है कि जिसने 12 लाख में 300 करोड़ का माल जो है वो क्लियर करा लिया है। क्या ये सारी चीजें आपको नजर आती? खुदा के लिए इसको सादक अमीन बनाने वाला तो खुद डैम फंड लेके भाग गया हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा जिसने इसको सादक अमीन का दिया था सर्टिफिकेट। अच्छा नकीब साहब ये बताइएगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आई है? ये भाई
मैं कहता हूँ तो मैं आपको भेज देता हूँ। ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ हो चुके हैं। यूट्यूब जरा खोलो ना तो आपको पता चल जाएगा। ये यूट्यूब पर कैसे बताया है? अभी तो मैं चांदे की बातें कर रहा हूँ, तो सारी बताऊंगा तो फिर सारा टाइम मैं ही ले जाऊंगा। नहीं वो ठीक है, सारा आप ले जाएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके एविडेंस नहीं होते, हम उनकी बात करते हैं जिनके एविडेंस है हमारे पास। और मत ये तो पूछ लें और बता देता हूँ ये आपका पॉइंट समझ आ गया है, आपका पॉइंट एक ही था, वो समझ आ गया है, उस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नकीब साहब, उस पर बात करते हैं। जी जी ठीक है। की बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनिएगा डॉक्टर साहब, आप आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बात करते हैं जी। नहीं मैं एक सेकंड दे रहा हूँ, एक सेकंड। कॉल खत्म हो गया, इनके खिलाफ बात की है और उसको उसकी नौकरी से निकलवा दिया उसको। आज उसका पढ़े ना तो पता चले सुने कि वो इसके कैसे बकियों के। मेरा कहने का मकसद यही है कि जिसको तकलीफ पहुंची है ना नकवी साहब, वो उसी के मुताबिक लिखता है या बोलता है। तो वो हर एक आदमी अपना फायदा देखकर बोलता है। कोई निकाला क्यों गया है, फिर उसको दोबारा लिया क्यों गया है, इस पे थोड़ी सी बता दें। उसको निकाल के फिर दोबारा क्यों लिया गया है, उसने जब मुंह खोला पूरा तो। हाँ ये तो होता है, यही तो कह रहे हैं हम। थैंक यू जी। सुनिए आपने गुफ्तगू। असल में ये हमने बात उस पर करनी जो कोई अदालती फैसला हो, किसी जगह साबित कोई चीज हो तो उस पर बात करनी। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, इल्जाम हैं ज़ाहिर है। उसको लोग कहते हैं हर एक आदमी अपने मफाद को देखकर बात करता है। आज का दौर ही ऐसा है, इसी तरह इसी वजह से लोग कंफ्यूज हुए हुए हैं। देखिए इमरान खान पे इल्जामात हैं, फॉरेन फंडिंग केस जिसकी बात की हमारे बरादर मोहतरम ने भी। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है, ये पुराना केस, काफी पुराना केस है, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। ये मुख्तलिफ अदालतों में भी रहा है ये केस, और इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। अकबर एस बाबर, ये जो सेक्रेटरी इत्तलात थे तहरीक इंसाफ के, मेरी मुलाकात से रही है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से पूरा प्रोग्राम किया था, उसमें बाकायदा अकबर एस बाबर की और सारी रिपोर्ट का हवाला दिया था। आज हम क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट आई है, जो करप्शन की न्यू करप्शन रिपोर्ट जो आई है, उस हवाले से क्या आप ये बताइएगा कि न्यू करप्शन जो रिपोर्ट आई है, इसका असर किस हद तक अदारों पर होगा? हुकूमत इस चीज़ को कंट्रोल करेगी, यानी नेक्स्ट ईयर अगर रिपोर्ट आती है तो इससे नीचे जाएंगे? देखिए हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तो ऑलरेडी चूँकि ये पिछले जो इनके 2.5 साल है, जुलाई 2018 में ये बरसकदार आए और अब ये 2021 शुरू हो चुका है। इन्होंने डिलीवर करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी पे गुजारा किया। पिछली हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये उनके असरात हैं, उन्होंने कर्जे लिए, उन्होंने करप्शन की, उन पे इल्जाम भी लगाए, उनको सजाएं दिलवाने की कोशिश भी की उन्होंने। उसी पे गुजारा करते करते आज इस हद तक पहुंच चुके हैं। अभी इन्होंने कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए और इनके जो वज़राए को डिलीवर नहीं कर सके अभी तक, तो इस पे आप उनको बदल इल्ज़ाम करार नहीं दे सकते। ये हुकूमत जो है वो अभी जो मसाइल का सामना कर रही थी ऑलरेडी, अब एक नया मसला, ये जो रिपोर्ट सामने आई है करप्शन के हवाले से, एक नया मसला उनके लिए खड़ा हो गया है। अपोजिशन इसको भरपूर इस्तेमाल करेगी और अवाम के दरमियान जो हुकूमत का थोड़ा बहुत एतमाद था और उसको भी बहुत ज्यादा झटका लगेगा। पहले ये एतमाद नहीं था, चूंकि हुकूमत टाल मटोल करके कुछ हुकूमत के अवाम के मफादात के हवाले से बात करने के बजाय जो है वो इल्जाम तराशी करके उन्हें गुजारा कर रही थी। तो अब ये इस रिपोर्ट के आने के बाद और इससे पहले जो ब्रॉडशीट का मामला जो है वो भी इंतहाई गंभीर है कि 4.5 अरब रुपए पाकिस्तान का सफारतखाना या हाई कमीशन जो है बरतानिया में उसने अदा किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान खजाने से बेशुमार वकला की फीसें दी गई और 2006 जो चला आ रहा था ब्रॉडशीट का, और उस ब्रॉडशीट ने इनसे हर्जाना लिया है। और वो जो चीज़ें जो हासिल करनी थी कि 200 अफराद के मुतालिक छानबीन करनी थी, वहाँ से रिपोर्ट्स लेनी थी, उसका भी कुछ हासिल ना हो सका। तो ये हुकूमत को बहुत ज्यादा झटका लगा। अगरचे ये मुशर्रफ दौर का मामला है, लेकिन चूंकि इस हुकूमत ने पैसे अदा किए हैं तो इस हुकूमत पे भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग के हवाले से ब्रॉडशीट की बात हो रही है, तो उसमें ये बताइएगा कि ये गवर्नमेंट ने पैसे यहाँ कम थे अकाउंट में,
दोबारा इतनी स्पीडली पैसे उसमें डलवाए हैं कि पूरे हो जाएं और अदा हो जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि इतना जल्दी काबीना ने भी मंजूरी दे दी और पेमेंट भी हो गई, इसके पीछे भी कोई हाथ है या क्या है? जी भी कहा तो सकता है, उस जमाने की जो ब्यूरोक्रेसी उस वक्त मुलवस थी, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेसी है या सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने ये इकदाम किए 2000 में मुशर्रफ दौर में कि 200 अफराद जिसमें पी पार्टी के लोग भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल है, उनका जो रिकॉर्ड वहाँ से हासिल किया जाए, उनके मुतालिक छानबीन की जाए, उनके जो एहसास हैं वहाँ पर उसके मुतालिक मालूमात हासिल की जाए। तो उसके लिए उन्होंने इस कंपनी को हायर किया और कंपनी के साथ माहिदा उन्होंने 2000 में शुरू किया, 2003 में खत्म कर दिया की तरफ पर। कंपनी अदालत में चली गई और करते करते 2017 तक ये मामला चला और अदालत में केस जीता इस कंपनी ने, और फिर अब जाके इनको हर्जाना जो है वो देना पड़ा कि चूंकि उस जमाने की फौजी हुकूमत थी और उस जमाने में कि जो उस जमाने के जो नैब के अफराद थे आजकल वो अदालतों में बैठे हुए हैं। तो सारा ये एक मिली भुगत है और इनको वो जल्दी जल्दी अदा करने लगे ताकि असल मामला सामने ना आ सके। और अब जो कमेटी बनाई है उसकी कमेटी का सरबराह भी उस फर्द को बनाया जो उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल था नैब का। तो अच्छा, इस जी जो अजमत सईद जो पर इतराज कर रही है जी जस्टिस रिटायर्ड हैं, हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, इस पे इसलिए इतराज कर रही है अपोजिशन के ये तो जानबदार फर्द हैं। ये जब कैद हुआ तो ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, तो इनके मतलब भी तहकीकात होनी चाहिए कि इन्होंने उस जमाने में ऐसा क्यों किया जिसका नतीजा कोई नहीं निकल सका। पाकिस्तान को वकला की फीस अदा करनी पड़ी, पाकिस्तान को अब जुर्माना देना पड़ा, तो ये एक जानबदार शख्स हैं, इसलिए अपोजिशन इस पर एतराज कर रही है। तो हुकूमत पर बहुत ज्यादा दबाव बड़ा है जिसको टालने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी अपोजिशन जो है पीडीएम की सूरत में एक बड़ी तहरीक का सामना कर रही है, जिसको माने या ना माने ये एक हकीकत है कि 11 जमातें सामने आई हैं हुकूमत के, प्रेशर डेवलप कर रही हैं, हर हवाले से प्रेशर डेवलप कर रही हैं। वो जो जमातें जो एक दूसरे के मुखालिफ थी अब मुतहद होकर सामने आई है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और प्रेशर बढ़ेगा हुकूमत पर। हुकूमत की चूंकि अवाम के साथ कनेक्शन इतने ज्यादा मजबूत नहीं है, अवाम के और हुकूमत के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसलिए हुकूमत के लिए बेशुमार चैलेंजेस हैं। हुकूमत के लिए ये निज़ाम को चलाना भी चैलेंज है और अब जो इल्जामात हुकूमत पर नए चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो ये मुश्किलात हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ सकती है मुश्किलात, और क्योंकि काफ़ी इशू सामने आ चुके हैं।